Essential of valid acceptance. The following are the legal rules are essential of a valid acceptance. Acceptance by offering. अब इसमें acceptance के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं regarding the offering. इस चीज का तो आप लोगों को पता होगा ना कि offer and offer, what is the difference between the offer and offering? The person who make offer is called offerer. The person to whom makes offer is known as an offering. This is the difference between offer and offering. Acceptance by offering. अब इसमें ये कह रहे हैं कि once whenever someone makes offer to the offering, there is a need by the part of the offering to give their acceptance. And without giving the acceptance by the offering, then there is no contact in between the offer and the offering. This is very example here. For example, if there is an offer which has been made by X to Y, but what happened? Y is not interested in that offer, but Z came to know that there is an offer which has been given X to Y, and Z is agree to accept that offer. So in this sense, there is no mean to accept the offer by Z, because that offer is not given to Z. The offer which has been made by the X to Y, not to Z. So in this sense, when by someone source Z came to know regarding that offer, and he will show his willingness. तो इस तरह का जो acceptance किया जाएगा, वो there is no contact in between the parties, because the offer is especially from X to Y, not to Z. And Z came to know by some source कि उनके दरमियान इसका मामला चल रहा है और वो अपनी willingness show करे कि मैं ठीक है इस offer को accept करता हूँ. अगर वो करता भी है तो then there is no contact in between them. So it is important when offer is made to the offeree and offeree given their acceptance, and without the given acceptance by the offeree, there will be no contact. भले कोई भी उस ऑफर की ऑफर कबूल करे तो वो जो है एक कॉन्टेक्ट नहीं है, क्योंकि that is specifically in between X and Y, not Z. आगे आ जाए absolute and unconditional. Absolute and unconditional. When an offer is made by the offerer to the offeree, तो उसमें क्या होगा कि वो absolute होना चाहिए और unconditional होनी चाहिए. ये नहीं है कि जो ऑफर दी गई है और उसके साथ आप इंटेक्ट कर दें किसी कंडीशन को. तो इस तरह की जो एक्सेप्टेंस है that is not taken into consideration, तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, he offered to sell his watch to B for rupees 500. He replies that he can buy it for rupees 300. There is no acceptance on the part of B. A offer B को कहता है कि मैं आपको 500 की घड़ी सेल आउट करता हूँ. तो B कहता है मैं am willing, मैं ठीक है आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, but with this condition that I will purchase that watch at the cost of 300 rupees instead of 500 rupees. तो इस तरह का अगर कंडक्ट किया जाए तो इससे क्या हुआ कि वो जो कॉस्ट ऑफ वॉच थी वो एब्सोल्यूट नहीं रही, और फिर इस तरह जब उसने कॉस्ट ऑफ वॉच को रिड्यूस किया 500 से 200 पर, तो क्या हुआ, इट बिकम अनकंडीशनल. सो देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ बी. इसी तरह आगे आप आ जाए प्रेस्क्राइब्ड मैनर. प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जैसा कि आपको बताया है कि प्रेस्क्राइब एक तरीकाकार जो प्रेस्क्राइब कर दिया जाए, आपको पाबंद कर दिया जाएगा आपने ऐसा करना है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है. अगर आप उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, देयर इज नो एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जांपल, ए मेक्स एन ऑफर टू बी एंड आस्क्स हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय टेलीग्राम. बी सेंड्स दिस एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट. इट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस. तो कहता है कि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको लेटर लिखा
और लेटर में मैंने आपको कहा था, आपने रिप्लाई मुझे टेलीग्राम, ये बदरिया टेलीग्राम देना है। तो बदरिया टेलीग्राम देने के बजाय वो उसको बाय पोस्ट देता है जवाब। तो टेलीग्राम के जरिए देता तो जल्दी कम्युनिकेट हो जाना था, बदरिया लेटर दिया तो उसको टाइम लगा। तो उसने उसको मना किया था कि ऐसे नहीं करना। जैसे उसने कंडीशन लगा दी कि प्रेस्क्राइब मैनर था कि यू हैव टू बी रिप्लाई टू द ऑफरी, कि आपने रिप्लाई करना है थ्रू टेलीग्राम। तो उसने अगर ऐसा नहीं किया तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो इस तरह ये एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड नहीं रही, क्योंकि जिस तरह का आपको पाबंद किया गया कि आप कम्युनिकेट करें तो आपको वैसे ही करना चाहिए था। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। इसी तरह आगे आ जाए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। A offers by letter to purchase the house. B expresses his intention to sell it but does not reply. B said to C. A has no legal remedy against B. Communication of acceptance. Acceptance को communicate करना वो किस तरह कि फॉर एग्जाम्पल और बी उसको पाबंद करता है, ए उसको पाबंद करता है बी को, यू हैव टू बी रिप्लाइंग वेदर, वो उसके स्पेसिफिक टाइम भी दे सकता है। अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया तो ए ने बी को कहा कि मैं घर बेच रहा हूं, अगर आपने खरीदना है देन यू लेट मी नो। अगर वो उसको नहीं बताता और अगर उसने उसको टाइम दिया हुआ है उस टाइम में भी नहीं बताता, अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया तो देन वी हैव टू बी अज्यूम देयर इज अ रीजनेबल टाइम, कंसीडरेबल टाइम। तो वो उसके बाद ए जो है अपने घर सी को सेल आउट कर देता है। जब सी को सेल आउट किया तो देयर इज नो मीन लेफ्ट टू एक्सक्यूज बाय बी टू ए। तब बी का ए से कोई एक्सक्यूज करने का जवाब नहीं रह जाता, क्यों कि ए ने मेक रिक्वेस्ट कि यू हैव टू बी रिप्लाई मी इफ यू आर विलिंग टू परचेज माय हाउस। बी ने उसको रिप्लाई नहीं किया। अगर उसने स्पेसिफिक टाइम दिया हो तो तब वो स्पेसिफिक टाइम में जवाब देने का पाबंद होगा। अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया तो रीजनेबल को आप किस तरह असेस करें। फर्स्ट करें आपको लेटर आया, लेटर नॉर्मली अगर लोकल है तो 2-3 दिनों में पहुंच जाएगा, दूसरे शहर में 2-4 दिनों में पहुंच जाएगा, 5 दिनों में पहुंच जाएगा। तो इट विल बी अज्यूम द रीजनेबल टाइम। और अगर वो 2 महीने के बाद उस घर को सेल आउट करता है तो देन सी इज नॉट एंटाइटल्ड टू, बी इज नॉट हैव अ राइट टू फाइल सू अगेंस्ट ए। तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं रह जाती कि वो उसके खिलाफ केस करे। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का जैसे आपको पहले भी बताया दैट इन रिटन फॉर्म, इम्प्लाइड जो कि बाय एक्ट होता है, आप किसी जॉब पर हो तो उसके मुताबिक। अब इसमें मिसाल है A offered by letter to sell his cycle to B for ₹2,000. B accepts his offer and sent a letter of acceptance. It is an acceptance. A B को अपनी साइकिल 2000 में सेल आउट करने का लेटर लिखता है, B इसको रिप्लाई कर देता है कि ठीक है, I accept your offer to purchase that cycle at the cost of ₹2,000. So this is called the express. कि आपने लेटर आपको आया है, ऑफर हुई है, आपने बजिया लेटर उसको रिप्लाई कर दिया, so then offer is complete in the form of express condition. Secondly, आप implied को समझिए। A widow promised to give some property to her niece if she stayed with her. The niece stayed in her residence till her death, and the niece was entitled to the property. अब इसमें ये नीचे जो लिखा भी रॉ वर्सेस ए रॉ, ये दिस इज द केस का, दिस इज द जजमेंट, तो ये वहां से लिया। तो इसमें ये फैसला किया गया कि अगर नीस और विडो के दरमियान ये तय पाया है कि वो उसके साथ रहे तो वो उसको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उसको दे देगी। तो जो नीस है तो वो उसके साथ रहती है टिल द डेथ।
तो उसके बाद उसके वारसन अगर उसको हिस्सा नहीं देते तो ही इज द राइट टू फाइल हिज सूट एंड देन ही कैन गेट दैट शेयर व्हिच द विडो मेड अ प्रॉमिस विद नीस। तो जो उसने इसका प्रॉमिस किया था तो उसकी कंप्लायंस के लिए वो कोर्ट में जा सकती है और अपनी रेमेडी अवेल कर सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ फॉलोस ऑफर। अब इसमें एक्सेप्टेंस जो है ना वो फॉलो किस चीज को करेगी? ऑफर को। अब फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसका डॉग लॉस्ट हो जाता है तो वो उसका अपने मुलाजिम को कहता है कि जाएं उसको ढूंढ कर लाएं। उसका मुलाजिम चला जाता है। उसके जाने के बाद ओनर जो है वो ये अनाउंस करता है कि मैं इतना इनाम दूंगा, 10,000 इनाम दूंगा जो मेरा डॉग ढूंढ कर लाएगा। तो जो मुलाजिम गया होता है वो जाता है, वो ढूंढ कर ले आता है। तो लाने के बाद उसको पता चलता है कि ओनर हैज अनाउंस एज ए अवार्ड ऑफ 10,000 रुपीज। तो वो कहता है कि आप ओनर से डिमांड करता है। तो इस सूरत में, इन हालात में, चूंकि एक्सेप्टेंस फॉलोस ऑफर, जो एक्सेप्टेंस फॉलोस ऑफर, इट मींस कि वो उसके नॉलेज में अगर होता जाते वक्त, then he has a entitled, then he has a right to claim that award। और जब उसको उसके नॉलेज में था ही नहीं तो इट मींस देयर इज नो एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज पार्ट मीन टू फ्रॉम द ऑफर। तो लिहाजा ही इज नॉट राइट टू बी क्लेम दैट अवार्ड। तो उस सूरत में इस किस्म का अवार्ड जो है वो उसको क्लेम करने का कोई राइट नहीं रखता। आगे देखते हैं रीजनेबल टाइम। जैसे आपको बताया रीजनेबल टाइम से मुराद स्पेसिफिक टाइम, मतलब मैं आपको एक then you let me know from the part of the offering। तो उसमें क्या होगा कि वो स्पेसिफिक टाइम लैप्स कर जाएगा। तो वो स्पेसिफिक टाइम में करना होगा। ये है आपका नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशंस। कम्युनिकेशन मीन कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने के हाउ मेनी सोर्सेज आर देयर? टेलीफोनिकली, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, और जो दूसरे सोर्सेज हैं अब तो फेसबुक, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला, सोशल मीडिया, दीज आर द वे टू कम्युनिकेट टू द अदर्स। तो यहाँ पर कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। अगर आपने ऑफर की है, एक्सेप्टेंस की है, तो दैट कैन बी रिवोक। रिवोक मीन यू कैन बी विथड्रॉ फ्रॉम योर ऑफर, यू कैन बी विथड्रॉ फ्रॉम योर एक्सेप्टेंस। जो ऑफर हो, एक्सेप्टेंस को हो, उसको रिवोक करना हो, तो देयर इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट टू देम, टू ईच अदर। यानी मीन the offer and offering, if there is a proposal and acceptance, and if they are willing to be revoked from proposal and their acceptance, then it is necessary to be communicate to each other in sufficient time। Sufficient time mean कि मसलन आप एक किसी को कहते हैं कि ऑफर करते हैं और ऑफर का टाइम आप कहते हैं कि ये 2 दिनों में आपने इसका जवाब देना है। तो जो आपने ऑफर की लेकिन आप उस 2 दिनों से पहले उसको रिवोक कर जाते हैं, यानी कि एक दिन गुजरता है तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं कि नहीं भाई मैं इसको रिवोक कर रहा हूँ। तो दैट इज द रीजनेबल टाइम। तो वो तो समय लगता है, लेकिन
टाइम 2 दिन गुजरने के बाद आप कहेंगे इसको रिवोक करता हूं, जबकि उसने आपकी ऑफर को के अगेंस्ट अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है थ्रू पोस्ट, थ्रू किसी भी कम्युनिकेशन सोर्स से, तो देन देयर इज नो वे टू बी रिवोक, तो तब नहीं होगा. देन यू हैव टू बी फेस द सू if there is a breach of a contract. तो इस तरह जो है you have to be careful whenever you have to be willing to be revoked your offer and acceptance, then you have to be revoked these things within a sufficient time, not with the lapse of the time. Number 1, communication of offer. A offer by letter to sell a van to B rupees 1 lakh. The letter reaches B on 8th March. Communication offer is complete on 8th March. अब आप किसी से वैन को सेल आउट करने की एक ऑफर करती हैं कि मैं अपनी वैन जो है वो सेल आउट करता हूँ ए बी को, और वो उसको बजरिया लेटर करता है, और ये उसको लेटर जो है वो 8 तारीख को मिल जाता है. मीन जब वो 8 तारीख को उसको मिला है तो इट मीन्स वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. वो जो आपने सोर्स ऑफ लेटर का किया था, जब आपने उसको लेटर को लिखा है, उसको मेल में डाला है और उसको पोस्ट किया है, और जैसे ही वो रिसीव हुआ तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. जब उसने रिसीव कर लिया तो इट मीन वो कम्युनिकेट उसको हो गया है, वो ऑफर उस तक पहुंच चुकी हुई है. आगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है कब? इसमें 2 पॉइंट्स हैं. नंबर 1, as against the proposer when it is put in the course of the transmission to him so as to be out of power of the acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. अब ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है किस तरह? 2 तरीकों से. एक तो तरीका उसकत है कि जब आप अपना लेटर को, एक्सेप्टेंस लेटर को लिखते हैं, लिखने के बाद एनवेलपमेंट डालते हैं, डालने के बाद तो जब पोस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस के पास जब वो आता है, स्टैम्प वगैरह रजिस्ट्री आप करवाते हैं, कोरियर के करवाते हैं, देन दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, वो आउट ऑफ योर पावर. तो आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि अब उनके आगे सर्विसेज शुरू हो जाती हैं. तो इट मीन्स वो कम्युनिकेशन जो है वो उसको हो गई. इसी तरह अगर वो उसके नॉलेज में आ जाए कि ऑफर की कि वो प्रपोजल जो था, तो देन इट इज आल्सो बी कम्युनिकेट. तो इस तरह कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस जो है वो मुकम्मल हो जाती है. इसके बाद आप देखें कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशंस. कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशंस में भी इसी चीज को फोकस किया है कि आप अपना जो एक्सेप्टेंस है या ऑफर है बोथ यू कैन बी रिवोक, लेकिन जब आपने रिवोक करना है यू हैव टू बी रिमेंबर 2 पॉइंट्स. 1 पॉइंट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन. अगर वो ऑफर है या एक्सेप्टेंस है, व्हेन यू हैव टू पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीन कि आपने उसको मेल में डाला और उसको पोस्ट कर दिया या उसके नॉलेज में आ गया ऑफर के या एक्सेप्टेंस के, देन इट इज कंप्लीट. कम्युनिकेशन और रिवोकेशंस कंप्लीट हो जाएगा जब आपने उसको पोस्ट कर दिया या उसके नॉलेज में आ गया. अब जैसे कि मिसाल है इधर, A revokes his offer by letter on 8th March. The letter reads B on 10th March. Revocation is complete as A on 8th. When the letter is revoked, is posted. Revocation is complete as against B on 10th when letter or revocation is in. अब A है, B है. A ने रिवोक किया, लेटर भेजा 8 तारीख को रिवोक का, तो वो 8 को ही उसकी रिवोकेशन कंप्लीट हो गई है. अब इसी तरह अगर एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो उसको भेजता है तो उसको इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑन 10th. तो अगर वो 10 तारीख को भेजता है उसको कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है. तो मीन आपने जो रिवोकेशन करना है इमीडिएटली करना है और विद इन टाइम
उसको करना है आपने। इसके बाद देखिए टाइम ऑफ रेवोकेशंस। टाइम ऑफ रेवोकेशंस में इसमें एक टाइम जो है वो एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। इसमें जो मिसाल दी हुई है, एन ऑफर में बी रिवोक एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर बट नॉट आफ्टरवर्ड। अब ये है कि इसमें ऑफर ने जो ऑफरिंग की है या कम्युनिकेट किया है, इसमें जो टर्म यूज हो रहा है नॉट आफ्टरवर्ड। मसलन आपने किसी को कहा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर दें, और वो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, कितने अरसे में आपने वो प्रोडक्ट तैयार करना है? आपने वो जो प्रोडक्ट है वो तैयार करना है फर्ज करें 1 माह में, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि बट नॉट आफ्टरवर्ड। तो जब 1 माह खत्म होने वाला है, अब जब 25 तारीख को या उस माह के 25 दिन जब गुजर जाते हैं, तब आप उसको कहते हैं कि जनाब ये मेरे पास वेयर हाउस में जगह नहीं है या मेरे पास पैसों का रेंज नहीं हो सका, तो इस तरह मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो लिहाजा दिस इज नॉट टाइम ऑफ रेवोकेशन। कि मैंने जिसने ऑफर एक्सेप्ट की और मैंने ऑफर दी कि ठीक है मैं माल तैयार कर देता हूँ, तो उसका क्या हुआ कि वो टाइम ऑफ रेवोकेशन में कि आपने मतलब 1 माह में जो माल तैयार करना था, तो 25 तारीख को आप कहते हैं कि जनाब मैं नहीं बना सकता या मेरे पास प्रेमिसेस नहीं है, तो मैं बस रखने की जगह नहीं है, मेरे पैसों का रेंज नहीं होता, दैट्स नॉट सफिशिएंट टाइम। इफ यू वांट टू बी रिवोक्ड from that goods which you have to place the order to that factory to make that product for him, तो वो 25 दिन तक उसने लेबर एंगेज किया, प्रोडक्ट लाया, उसको वर्किंग की, और एट द एंड ऑफ मंथ आप कहेंगे जी मैं रिवोक कर रहा हूँ, तो नो, देयर इज नो मीन टू बी लेफ्ट टू बी रिवोक। तो दैट पर्सन वो आपके खिलाफ जो है वो जो क्या कहते हैं वो दावा कर सकता है और इज एंटाइटल्ड टू फाइल सूट अगेंस्ट यू। तो इस तरह ये मतलब उसके पास ये राइट है कि आपके खिलाफ वो कार्रवाई करेगी। अच्छा, इस तरह है कि अभी आपका टाइम भी है थोड़ा, इसमें चले मैं थोड़ा सा देखता हूँ, बाकी आप देखिएगा। लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, पोजीशन ऑफ ऑफर, कि अगर एक्सेप्टेंस का लेटर लॉस्ट हो जाए उसके मुतालिक कह रहे हैं। नंबर 1, पोजीशन ऑफ ऑफर, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड द ऑफर इज बाउंड बाय दैट एक्सेप्टेंस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिलेड और लॉस्ट। In order to bind the offer, the letter must be stamped, correctly addressed and properly posted. If wrong address is given by the offerer himself, he will be bound by the acceptance. अगर एक ऑफर दी गई है, उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस देनी है, और जो ऑफर ने एड्रेस दिया है और अगर वो एड्रेस गलत हुआ तो जो ऑफर है वो उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन ऑफर देने के बाद एक्सेप्टेंस दी गई है और एक्सेप्टेंस देने में डेट शेयर हो गई है, तो इस तरह का जो एक्सेप्टेंस होगी दैट विल टेक इनटू कंसीडरेशन, उसको कंसीडरेशन में लिया जाएगा। ये नहीं है कि अगर 1-2 दिन लेट हो गया तो वो उसको कहेगा जी ये एक्सेप्टेंस नहीं है। पोजीशन ऑफ एक्सेप्टर, the acceptor is not bound by the letter of acceptance till it reaches the offerer. Until the letter of acceptance reaches the offerer, the contract remains voidable at the option of acceptor. Acceptor may enforce the contract or revoke his acceptance before the letter reaches the offerer. अब इसमें क्या है पोजीशन ऑफ एक्सेप्टर, कि अगर किसी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तो उसको लेटर के पहुंचने से पहले रिवोक करना है। ये नहीं है कि वो लेटर पहुंच गया है और आप उसको फिर जो है रिवोक कर रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन बोथ द लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस, अब फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन एंड लेटर ऑफ द रिवोकेशन, अगर 2 लेटर हैं, एक में आप जो है एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और दूसरे में रिवोक कर रहे हैं,
तो कहते हैं अगर ये 2 लेटर चले जाते हैं, एक में एक्सेप्टेंस का दूसरे में रिवोक करने का, तो किसको कंसीडर किया जाएगा? तो वो कहते हैं कि जो पहले पहुंच जाएगा उसको कंसीडर किया जाएगा, आइदर रिवोक का या आइदर एक्सेप्टेंस का, तो वो उसका पाबंद होगा जो भी उसको लेटर पहले मिल जाए। कॉन्टैक्ट ओवर टेलीफोन, टेलीफोन पे जो कॉन्टैक्ट किया जाएगा उसमें वही हैसियत होगी जिस तरह कि आप इन राइटिंग कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वही तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसके ऊपर लगेंगे। तो ये आप इसको फर्दर जरा देख लीजिएगा।